ਮਿਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਈ ਏ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਈ ਏ ਰਾਹ ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਨਾ ਕਬਰ ਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਚੱਕੜੀ ਸਕੀ ਰੋਮੀ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਕਬਰ ਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਚੱਕੜੀ ਸਕੀ ਰੋਮੀ ਮੋਹਰੇ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਕਬਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਕਬਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈਏ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਚਾੜਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਚਾੜਦੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਖਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਤਾਰੀਫੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ
हर कोई पाਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ नाच कर नाच कर नाच हर कर कोई पाਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ आइए ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ना कबीर दा जोर चल सकिया ਨਾ ਚੱਕਣੀ ਸਕੀ ਰੋਮੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਬਰ ਨਾ ਜੋਰ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਚੱਕਣੀ ਸਕੀ ਰੋਮੀ ਬੋਲੇ फट गई सी कबर सच हो गया जो नबियों दा सच्चा परिवार ਸੀ ਕਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ नाचो नाचो आ जाओ नाचो नाचो हरे अशीषियां हवा सुनो जी उठने की सामर्थ्य आप पे उतरे अभी मेरे को माइक मेरा ऊंचा चाहिए मैंने कहा जी उठने की सामर्थ्य आप पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो पाइए लोग वही रहो अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज पे तैयार हो जी उठने की सामर्थ्य को देखने के लिए कैमरा मैन इधर आओ निमत दिखाओ अपने हाथों को हिलाओ सुनो आज सिंपल संडे नहीं आज चिल्लाने वाला भी नहीं आज चिल्ला के नाचने वाला संडे ये प्रॉब्लम है तुम लोगों में अपनी अपनी जगह पे चले जाओ अपनी जगह पे चले जाओ अपनी जगह पे जाओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी चले जाओ सुनो मेरी बात अगले 10 मिनट अगर हम नाचेंगे मेरे को शैतान को डांटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली मैं बाद में इसलिए आया हूं आज कि हम कंटिन्यू खुदावंद की डेमोन्स्ट्रेशन को देख सके आज मुझे ये मालूम है आज जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दी है वो आसमान से मसा करके दी है मुझे और आप कोई भी क्यों ना हो ऑनलाइन हो यहां पे हो गुरदासपुर में हो आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के नाम में अपनी अपनी जगह पे जाके डांस करेंगे हम ताकि लोग आगे को ना आए चले जाओ अपनी अपनी जगह पे जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो सुना पहले जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो पाइए मुझे नहीं मालूम था कि एक क्वायर कुर्ता पजामा में आने वाली और मुझे खुद नहीं मालूम था मैं कुर्ते में आने वाला सब कुछ प्रोफेटिक हो रहा है आज मैंने कहा सब कुछ प्रोफेटिक हो रहा है आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में आज सिर्फ प्यारा गाओ खाली हाथी आया इस जग ते खाली हाथी तो दूर जावेगा खाली हाथी आया इस जग ते खाली हाथी तो दूर जावेगा जिंदगी दा राज है यीशु जी जिंदगी का हमेशा उसको पावेगा जिंदगी दा राज है यीशु जी जिंदगी हमेशा उसको पावेगा जिंदगी हमेशा उसको पावेगा जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीषियां हो बाबलो पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे
कोलो पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हर आशीष यहोवा कोलो पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए अपने पड़ोसी को बोलो गाना गा के बोलो यीशु जी का नाम जप बोलो अपने पड़ोसी को यीशु जी का नाम जप बोलो पड़ोसी को बोलो पड़ोसी को जी ने मौत उत्ते पाइए बोलो पड़ोसी को यसू जी दा नाम जप बंदिया बोलो पड़ोसी को जी ने मौत एक दूसरे को बोलो यसू जी दूसरे को बोलो जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए जोर से बोलो हालेलुया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जितनी बहनें हैं आज जितनी बहनें खड़ी आपके कपड़े आपकी चुन्नियां ये हीलिंग चुन्नियां बन चुकी हैं। मैं सच कह रहा हूं अगर ये बीमार पे गई तो बीमार का हील है यीशु मसीह के नाम में। आपके रुमाल आपके कपड़े मैंने कहा जेंट्स ये हीलिंग रुमाल है ऐसे ये हीलिंग शर्ट है हीलिंग पैंट है यीशु मसीह के नाम में। और ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपके चर्च अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी को यसू जी दा नाम जप बंदिया ओ यसू जी दा नाम जप बंदिया बोलो पड़ोसी को यसू जी दा नाम जप बंदिया यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जी ने मौत उत्ते पाइए जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हर आशीष यहोवा ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी हर आशीष यहोवा ਵੱਲੋਂ पाइए अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। आज इस वर्ड के द्वारा इस एटमॉस्फेयर के द्वारा आपको जिंदगियां मिले यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का दास होने के नाते आपका अगुवा होने के नाते मैं कमांड करता हूं डिक्लेयर करता हूं हर वो कर्ज जो आपके ऊपर था और है आज जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा वो कर्ज सदा के लिए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो कर्ज जो शर्मिंदगी का है वो कर्ज जो बीमारी का है वो कर्ज जो दुष्ट आत्मा का है वो कर्ज जो गरीबी का है वो कर्ज जो शर्मिंदगी का है यीशु मसीह के नाम से जीतने की सामर्थ्य के द्वारा पहुंच दिया जाए। आज जीतने की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में ठहर जाए। आमीन हो चाहिए आशीष आपके चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपके चर्च। ऊंची आवाज़ बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं अपने दिल को खोलता आपके वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। मैं 100 गुना फलों को लाने की प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं मांगती हूं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं चाहता हूं आप इसी तरह 5 मिनट खड़े रहें। एक वचन आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। रोमियो 4 उसकी 25 आयत को वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्म में ठहरने के लिए वो झिलाया भी गया। हमने सुना होगा आज पूरी दुनिया में लोग चर्चिस में इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि उन्हें इतना पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है वो मुर्दों में से क्यों जी उठा?
सिर्फ वचन सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा मैनेजमेंट का आत्मा है। वो वचन सुनने वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। क्या आपको मालूम है वो क्यों जिलाया गया? मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन मालूम है क्यों वो मुर्दों में से जी उठा? पुराने टाइम में, पुराने नियम में, पुराने लोगों में बाइबल कहती है वो किसी किसी के ऊपर दया करता था। किसके ऊपर उसने दया की? बाइबल कहती है उसने मोसेस के ऊपर दया की, मूसा के ऊपर। उसने मूसा के ऊपर दया की और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा मूसा के ऊपर उतरता था और जब वो अपनी छड़ी को समुद्र की ओर करता था तो समुद्र दो भाग होता था। हाँ या ना? बाइबल कहती वही परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के साथ था, वही परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर का आत्मा एलिया के साथ था और अलीशा के साथ था। और जब एलिया और अलीशा अपनी चद्दर को, अपने कपड़े को जब नदी के ऊपर मारते थे तो वो नदी दो भाग होती थी। और बाइबल कहती है उनके विषय में एक ही गवाही दी जाती थी कि ये जन परमेश्वर के धर्मी जन हैं, ये परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, इन्हें परमेश्वर ने साफ किया है और ये परमेश्वर के नबी हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर के दास हैं। पुराने नियम में ऐसा होता था और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी गवाही दी, मूसा की गवाही दी कि मैंने इतना नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। परमेश्वर ने अब्राहम की गवाही दी कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं, जिस देश को, जिस शहर को मैं नाश करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? क्योंकि अब्राहम मेरा दोस्त है। बाइबल कहती परमेश्वर ने दाऊद के लिए गवाही दी कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला है। वो गवाही सिर्फ धर्मी लोगों के लिए दिया करता था, लेकिन आज मौका बदल चुका है। बाइबल कहती है अब परमेश्वर यह चाहता था कि जो दया थोड़ी थोड़ी होती थी, जो दया किसी किसी पे होती थी, जो दया किसी किसी जन, किसी किसी नबी, किसी किसी परमेश्वर के दास पे होती थी, परमेश्वर ने कहा अब वो युग चलेगा, अब वो समय चलेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा मैं ये दया सबके ऊपर बहाऊंगा। अब परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उस वचन को हम पढ़ेंगे कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, ठहरने के लिए वो जिलाया गया। अगर आपको यह मालूम हो कि वो क्यों जिलाया गया तो बाइबल कहती है जिस तरह वो अब्राहम को देखता था, जिस तरह वो मूसा को देखता था, जिस तरह एलिया और एलीशा को देखता था, उसी आंख से, उसी नजरिए से आपको देखने के लिए बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जिलाया गया। इसका मतलब यह है कि जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को देखता था, जिस तरह परमेश्वर मूसा पे अपनी दया रखता था, परमेश्वर कहता आज हर वो विश्वासी जो मेरे जी उठने पे विश्वास करेगा वो उसी तरह मूसा की तरह काम करेगा, अब्राहम की तरह काम करेगा, वो आज का एलिया और अलीशा होगा। मैं नहीं जानता ये कौन विश्वास कर रहा है, लेकिन जो विश्वास कर रहा है उसका आमीन टेंट से बाहर जाने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। बाइबल कहती है, जब मैं अपनी आपको बात बताता हूं, जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते परमेश्वर कहता अपना हाथ बढ़ा, और इस तरह से अपना हाथ बढ़ा, और इस तरह से अपना हाथ बढ़ा, जिस तरह मैं आपको बोलता हूं मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा और आप अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाएंगे। पता है क्यों? बाइबल कहती है जैसे ही अब्राहम अपनी छड़ी को इस तरह समुद्र की ओर करता था, परमेश्वर की रूह को वो डायरेक्शन देता था कि वो किस ओर जाए और कार्य करे। बाइबल कहती है जैसे ही एलिया और एलीशा अपनी चद्दर को उस नदी के ऊपर मारते थे तो वो परमेश्वर की आत्मा को डायरेक्शन देते थे कि तू इस तरफ काम कर। बाइबल कहती है ये असीम धन, जब हम दूसरा कुरिन्थिया उसके एक वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, एक और वचन कुरिन्थिया का पढ़ते हैं, कहता हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं आज। उसने कहा ये असीम धन ये तुम्हारे मिट्टी के बर्तन में, तुम्हारे जीवन के अंदर रखा है। ये धन कहता तुम्हारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। ये धन, ये असीम सामर्थ कहता तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बॉडी के अंदर रखी हुई है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि जिस ओर आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे उस ओर शैतान आज भागने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे। उसने कहा यह असीम धन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, यह असीम धन तुम्हारी मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों जिलाया गया। बाइबल कहती है वो इसलिए जिलाया गया कि जिस तरह वो अब्राहम को देखता था वो तुम्हें देख सके।
जिस तरह वो मूसा को देखता था वो तुम्हें देख सके। उसने कहा मूसा को मैंने बोला अपनी छड़ी उठा और समुद्र दो भाग होगा। परमेश्वर कहता वो असीम सामर्थ आज मैं तुम्हें देता हूं, इस मिट्टी के बर्तन में देता हूं। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको एक और वचन देता हूं कुरिन्थिया का, उसमें लिखा हुआ दूसरा वचन कहता जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हारा क्या किया? अभिषेक किया। अगर तुम अपनी बीमारी को लेकर बैठ जाओगे, रोते रहोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहता मैं इसलिए जी उठा हूं कि तुम्हें धर्मी ठहरा सकूं, और धर्मी ठहरा के तुम्हें मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, एलिया की तरह, अलीशा की तरह देख सकूं, और तुम भी ये बात समझ सको कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सामर्थ छुपी। आज जिस और ये हाथ जाएगा वो बीमारी आज जाने वाली, और ये हाथ मैं आपके ओर बढ़ाता हूं और बोलता हूं हर वो बीमार जो आज बीमार है उसकी बीमारी श्रापित हो यीशु मसीह के नाम में। ये हाथ उसी अथॉरिटी से मैं बढ़ाता हूं आपकी लाइफ की ओर। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ के अंदर है मैं उससे कमांड करता हूं, वो दुष्ट आत्मा इस हाथ को देखे और चली जाए आपकी बॉडी को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वही हाथ में आपकी ओर बढ़ाता हूं। आपके कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके श्राप, डिले का आत्मा जो आपकी लाइफ के अंदर है, उसी ये हाथ नहीं, ये मैं परमेश्वर की आत्मा को आपकी लाइफ के ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर वो जाए और हर वो श्राप खत्म कर दे। आज मैंने लंगड़ों को चलता हुआ देखा है चर्च, आज मैंने क्रिपल्स को चलता हुआ देखा है, जिनके पांव टेढ़े मैंने चलता हुआ देखा है। चलो जी उठो, यीशु मसीह के नाम में जी उठो। व्हील चेयर के रोगी जी उठो, व्हील चेयर के रोगी जी उठो, व्हील चेयर के रोगी जी उठो, शिकंजों के रोगी जी उठो, अंधे जी उठो, लंगड़े जी उठो। आमीन हो चाहिए आशीष आपके चर्च। आज मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में जहां जहां भी आप बीमार खड़े, जिम्मेवार बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों जी उठा। बाइबल कहती है हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए। और शैतान गेम्स खेल रहा है आपके साथ, आपको बॉयफ्रेंड दे रहा है और गर्लफ्रेंड दे रहा है, क्योंकि उसके बाद उसे मालूम है जो असीम धन आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप उसको हिला नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है ये असीम धन जो हमारे अंदर है ये एक्टिवेट होता है और हम इससे यूज कर पाते हैं, हम इससे काम कर पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सिंपल ईस्टर मैसेज नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हम सब खुशी मनाएंगे, लेकिन क्यों जी उठा, क्यों जी उठा ये सवाल है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी दुष्ट आत्मा की आजादी के लिए लाइन में लगना चाहते हैं, प्रार्थना की लाइन में। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं और रूह को बोलता हूं वो आपके ऊपर उतर जाए, पाक रूह को बोलता हूं आप उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर डिले, हर श्राप, हर शर्मिंदगी get out! मुझको क्या हो रहा है? कौन है अंदर? होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आज मैं नहीं चाहता आप स्टेज पे खड़े मूसा को या स्टेज पे खड़े किसी दास को इस तरह देखे कि वो अजीब है। मैं ये चाहता हूं आप भी मेरी तरह काम कर सके, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये चाहता है, कहता मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूं। कहता मैं इसलिए नहीं जी उठाऊं कि तुम्हें भिखारी का जीवन दूं, मैं इसलिए नहीं जी उठाऊं कि तुम रो अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी बीमारी के लिए। कहता मैं इसलिए जी उठाऊं कि मैं तुम्हें धर्मी ठहरा सकूं। अगर तू धर्मी ठहराया गया तो अगर तू मूसा की तरह अपनी छड़ी उठाएगा समुद्र दो भाग होगा। अगर तू धर्मी है, अगर तू यीशु मसीह को मानता है, अगर तू बपतिस्मा ले चुका है, तो बाइबल कहती तू अपनी चद्दर, अपना कपड़ा मारेगा और समुद्र दो भाग और नदी दो भाग हो जाएगी। मैं नहीं जानता आप इस बात पे विश्वास करते हैं या नहीं। मैं आपका अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं और बोलता हूं हर शर्मिंदगी आज दो भाग हो जाए, हर बीमारी आज दो भाग हो जाए, हर रसौली आज पिघल जाए, हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए, हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। रूत रे आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च।
हालेलुया, हालेलुया। कहता ये असीम धन, कहता ये असीम धन, वचन को पढ़ेंगे, कहता ये असीम धन हमारे मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। ये आपकी बॉडी के अंदर है असीम धन, आपकी बॉडी के अंदर है असीम धन। आपके बटुए में लाख रुपया हो, लेकिन अगर आप उसे ऑटो वाले को नहीं देंगे, वो ऑटो वाला आपको लेके नहीं जा पाएगा। अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो आप पैदल चलेंगे और आपके पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। आप गर्मी में बैठे रहेंगे और पंखा नहीं खरीदेंगे तो फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा तू इसलिए धर्मी है क्योंकि मैं जी उठा हूं। आज मैं, परमेश्वर ने कहा, मैं नए विश्वासियों को, हर एक विश्वासी को अब्राहम की तरह देखता हूं, हर एक विश्वासी को मूसा की तरह देखता हूं, हर एक विश्वासी को एलिया की तरह देखता हूं, उसमें अलीशा की तरह देखता हूं, दबोरा की तरह देखता हूं, प्रोफेटेस की तरह देखता हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, यानी जिस तरफ तू हाथ करेगा मेरा रूह उस तरफ जाएगा, जिस तरफ तू चत्तर मारेगा मेरा रूह उस तरफ जाएगा। क्योंकि ये असीम धन ये मेरे पास नहीं, मैंने इसे तुझे दे दी है। ये तेरी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है, ये इस मिट्टी के बर्तन के अंदर छुपा हुआ है। अपने एक हाथ को उठा लो अपने रोग की ओर, अपनी शर्मिंदगी की ओर। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी किसे कहते हैं। अगर तुम अंधे हो अपने आंख पे रख लो, अगर बहरे हो तो कान पे रख लो, अगर डिले का आत्मा है अपने सिर पे रख लो। आज यीशु मसीह के नाम में इस हाथ को मैं आपकी ओर बढ़ाता हूं और रूह को बोलता हूं, वो अंधों को जिंदा कर दे आज, वो बहरों को चंगा कर दे आज, वो लंगड़ों को चंगा कर दे आज। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता और बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में जी उठो और चंगे हो जाओ, जी उठो और चंगे हो जाओ और देखने लगो, जी उठो चंगे हो जाओ और सुनने लगो, जी उठो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जा शिशु जी चर्च। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से फिर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आई कि नहीं आई? आज आप उस परमेश्वर को मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए जिस तरह लोग होते हैं कि हम जिसको मानते हैं उसका जन्मदिन है या हम जिसको मानते हैं उसका मरण दिन है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूं। अगर आज तुम अपने हाथ को बढ़ाओगे अपने उस फोटो की ओर जो तुम्हारे पति की है और वो मसीह में नहीं, इस हाथ से सामर्थ निकलेगी क्योंकि तुम धर्मी हो। तुम हाथ को बढ़ाओगे अपनी बीमारी की ओर, तुम्हारे हाथ से सामर्थ निकलेगी क्योंकि तुम धर्मी हो। तुम अपने हाथ को अपने सिर पे रखोगे और शैतान को डांटोगे, तुम्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम धर्मी हो और वो शैतान खुद ब खुद जाता रहेगा। उसने कहा ये धन तुम्हारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। पढ़ेंगे उसको, ये असीम धन कहता, ये धन परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वो तुम्हारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और तुम्हारे धर्मी ठहरने के कारण झिलाया गया। इसका मतलब परमेश्वर आज तुम्हें अब्राहम की तरह देखते हैं, आज परमेश्वर तुम्हें मूसा की तरह देखते हैं, आज वो तुम्हें एलिया और एलीशा की तरह देखते हैं। तुम जिस और अपना हाथ करोगे रूह उस और कार्य करेगा। मैंने कहा अगर तुम रोते रहोगे तो शैतान हंसता रहेगा। तुम अपनी दुष्ट आत्मा की ओर देखकर रोते रहोगे और शैतान खुश होता रहेगा। जिस दिन तुम जूतियां पहन लोगे, जिस दिन तुम अधिकारों को समझ जाओगे मेरी बॉडी के अंदर वो धन रखा हुआ है। सिर्फ करना क्या है? पवित्रताई में जीने हैं। करना क्या है? प्रार्थना में जीने हैं और ये धन काम में लेके आना है। आज यीशु मसीह के नाम में ये धन एक्टिवेट हो जाए आपकी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में ये धन एक्टिवेट हो जाए आपकी लाइफ में। आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, आप रोते रहेंगे डिले के लिए तो रोते रहेंगे। मेरी शादी नहीं हो रही, डिले, आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे। जिस दिन आपने गुस्सा किया, इस धन का प्रयोग करने की ठान ली, प्रार्थना में बैठ गए, अपना हाथ उठा लिया, डिले की आत्मा को डांट दिया, श्रापित कर दिया, उस दिन रिश्तों की लाइन लग जाएगी।
उस दिन डिले का आत्मा खत्म हो जाएगा। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। आज मैं देख रहा हूं ये धन आज चर्च में काम कर रहे हैं। अगर आप बहरे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, साउंड से साइड पे होके अपने आप को चेक करो, क्योंकि आपका बहरापन बीती बात हो चुकी है। मैं अंधों को देखता हुआ अभी देख रहा हूं। अगर आप अंधे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, और ये हाथ आपकी ओर जाए और यीशु मसीह के नाम में आपको आजाद करे। मैं ये हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। खामरा चर्च, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो सेक्शन, अंधे चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। जो चल नहीं सकते चलना शुरू करो। आज ही उठने की सामर्थ्य हमारे बीच में मौजूद है। यह असीम धन कहते तुम्हारे पास जो रखा है मिट्टी के बर्तनों में, ये आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को इसकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, और उस व्यक्ति की निशानी ये है कि आज वो घर से लड़के आया है और लड़ाई का कारण एक कुत्ता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप घर से लड़के आए एक कुत्ते की वजह से। आप यहीं पे मौजूद हैं। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आगे आना है आपको जल्दी। चर्च आज नॉर्मल संडे नहीं। इन स्पीकर्स की आवाज को कम करो, और ये नजदीक नजदीक कभी मत लगाना, आगे से थोड़ा दूर दूर लगाना। ऊंचा करो माइक को, अपने हाथों को उठा लो। आज नॉर्मल संडे नहीं। क्या है आज? ईस्टर संडे। आज मैंने प्रैक्टिकल करके भेजना है आपको। प्रैक्टिकली मैंने कहा रिजल्ट देके भेजना है आपको। वो कैंसर बीती बात है यीशु मसीह के नाम में। वो कैंसर बीती बात है यीशु मसीह के नाम में। आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल? घुटनों पे आ जाओ। आज के बाद आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली। आज के बाद आप समझ जाएंगे कि मुझे रोने की जरूरत नहीं, अपने असीम धन को प्रयोग करने की जरूरत है। आज से आप बैठेंगे जब प्रार्थना में, आपको मालूम होगा। अपने आप को चेक करो जिनकी टेस्टिमनीज बन चुकी है। मैं एक रसौली को निकलता हुआ देख रहा हूं, एक ट्यूमर को गायब होता हुआ देख रहा हूं एक भाई से। अगर आपको दुष्ट आत्मा है तो आज लास्ट डे होना चाहिए उसका। बोलो मैं धर्मी ठहराया गया हूं क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उसने मेरा अभिषेक किया है और ये अभिषेक मेरी बॉडी के अंदर रहता है। ये धन, ये मिट्टी के बर्तन यानी मेरी बॉडी में रखा हुआ है, और मैं धर्मी हूं। अगर धर्मी नहीं हो तो गुनाहों की क्षमा मांगकर धर्मी बन जाओ। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, क्योंकि आज अगर मौका खो दिया तो आप अभागे होंगे। अगर धर्मी नहीं हो तो तौबा कर लो, उसके लहू को मांग लो। प्रभु को बोले, प्रभु मैं नशा छोड़ता हूं, पाप छोड़ता हूं, व्यभिचार छोड़ता हूं, गंदगी छोड़ता हूं, मुझे धर्मी बना अभी। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप धर्मी हैं तो वो असीम धन आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप धर्मी हैं तो वो सामर्थ्य आपकी बॉडी के अंदर छुपी हुई। अब जिस ओर आप अपना हाथ करेंगे उस और पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर वो हाथ आपकी बॉडी के ऊपर है वो वहां काम करेगा। अगर वो सिर के ऊपर है वो वहां काम करेगा। अगर वो पेट के ऊपर है वो वहां काम करेगा। टांगों के ऊपर है तो वहां काम करेगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वहां काम करेगा। आप धर्मी हैं। जिस तरह मेरा परमेश्वर अब्राहम को देखता था वो आपको देखता है। जिस तरह वो मूसा को देखता था वो आपको देखता है। जिस तरह वो एलिया को, एलीशा को देखता था वो आपको देखता है। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? आपको मालूम हो गया कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। वो आपको विश्वासी के रूप में सिर्फ नहीं देखता, वो आपको धर्मी विश्वासी के रूप में देखता है। तब कोई कोई ऐसा होता था जिसे परमेश्वर धर्मी बोलता था, दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, यहोशू की तरह, एलिया की तरह, नबियों की तरह, प्रेरितों की तरह। बाइबल कहती है अब वो आपको इन निगाहों से देखता है। अब वो आपको इन निगाहों से देखता है।
अब वो आपको इन निगाहों से देखते हैं। मेरी बेटी परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे तू मेरा मूसा है, तू मेरा एलिया है, तू मेरा अलीशा है, तू मेरा दाऊद है, तू मेरा पौलुस है, तू मेरा पतरस है। इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जा, इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जा, रूह से भरने के लिए तैयार हो जा, आत्मा के कामों करने के लिए तैयार हो जा।